Hello students, in today's class we will continue with our discussion on void agreements. So we have already discussed in the last class about the void agreements which are in restraint of marriage under section 26 and in restraint of trade which is section 27. So moving on to the next kind of void agreements which is in restraint of legal proceedings, they are covered under section 28, wherein the very first pointer is that when you are entering into any agreement which is completely restraining someone from entering into any kind of legal proceedings. So if any party is being restricted, that you cannot take up any legal action, right? Or you cannot go into any legal proceedings for any of your rights which are arising from the contract, then they are held to be void agreements. There are case laws related to this, wherein one of the case law is of Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) versus Motorola India Private Limited. Now, herein Motorola India Private Limited was awarded a tender, fine, from BSNL. BSNL ने कोई टेंडर निकाला, उसमें टेंडर में जो लोएस्ट कोर्ट था वो मोटोरोला इंडिया का था. So they were awarded the tender and they were given an advance purchase order for running that project. Now, in this purchase order, there were certain terms and conditions written, right? Terms regarding the payment, the schedule and delivery for the delivery of goods, in how much time you have to do the project, etc. It also stated that if the tenderer, whosoever will be the tenderer who gets it, in this case it was Motorola, if the tenderer fails to deliver the goods and services within the prescribed period, the purchaser, which herein is BSNL, would be entitled to recover the damages at the rate prescribed therein. And it also said that the quantum of damages, कि कितना डैमेज हुआ है, वो कौन असेस करेगा? वो परचेजर असेस करेगा, यानी कि BSNL असेस करेगा. और जो BSNL असेस करके देगा कि इतने डैमेजेस हुए हैं आपके टाइम से प्रोडक्ट डिलीवर ना करने की वजह से, that will be considered as final and it will not be challengeable by the supplier. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि BSNL ने एक टेंडर अवार्ड किया मोटोरोला को, उसमें अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे कि इस टाइम तक आपको हमें ये काम करके देना है, और अगर जो टेंडरर है वो काम करके टाइम से नहीं दे पाते तो उनके ऊपर कुछ रिकवरी डैमेजेस लगेंगे, कुछ डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे और उनसे रिकवर किया जाएगा वो अमाउंट, विच इज फाइन. लेकिन उसके साथ ये लिखा गया कि कितने डैमेज हुए हैं, क्या पेनल्टी लगनी है, वो डिसाइड कौन करेगा? BSNL, जो कि टेंडर दे रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे और वही फाइनल होगा. उसके अगेंस्ट जो टेंडरर है वो कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते. अब जब ये केस फाइल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो क्लॉज है परचेज ऑर्डर में, दिस इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, और इसलिए ये वाला जो क्लॉज है ये वॉइड है, आप किसी को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते. देन इज अग्रीमेंट विच लिमिट्स द टाइम फॉर लीगल एक्शन. हमने लिमिटेशन एक्ट की पहले बात करी थी, तो लिमिटेशन एक्ट में आपका टाइम पीरियड गिवन है कि इसके बियॉन्ड आप इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हो, विच विल बी एप्लीकेबल क्योंकि वो एक एक्ट है. लेकिन उससे कम टाइम पीरियड या उससे उसको डिनाई करते हुए उसके अलावा जो लिमिटेशन एक्ट में लिखा है वो सब पे एप्लीकेबल है, लेकिन उसके अलावा आप कोई और टाइम फ्रेम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप किसी के राइट्स को कर्ब नहीं कर सकते हैं. Then is any kind of agreement which extinguishes the right of a particular party without regarding the time allowed by the Limitation Act. It is again a similar kind of a thing wherein you are saying कि लिमिटेशन एक्ट में तो ये क्लियरली गिवन है कि किस पार्टी का कब तक का राइट होगा, ठीक है, टू फाइल अ केस टू रिकवर द अमाउंट, जो लोन दिया है या जो पैसे दिए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कब तक लीगली एप्लीकेबल है, लीगली एनफोर्सेबल है. दिस इज गिवन इन लिमिटेशन एक्ट. लेकिन लिमिटेशन एक्ट को कंसिडर ना करते हुए उससे कुछ और कुछ अलग से रिलेटेड अग्रीमेंट साइन करना, से फॉर एग्जांपल अगर लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि 3 साल के बाद आप केस फाइल नहीं कर सकते हो
और मैं एक अग्रीमेंट एंटर करूं जहां पर मैं ये कहूं कि नहीं, आप 2 साल के बाद मेरे ऊपर केस नहीं फाइल कर सकते हो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो इस पॉइंट के अंडर आ जाएगा कि आप लिमिट नहीं कर सकते हो टाइम फॉर लीगल एक्शन अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग गिवन इन लिमिटेशन एक्ट। सिमिलरली किसी पार्टी का कोई भी राइट जो उसको एक्ट के अंडर मिला है, उसे आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर राइट तुम्हारा इस टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। जो लिमिटेशन एक्ट में लिखा है वो एप्लीकेबल होगा, उसके अलावा हम किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। Now there are certain exceptions to these points. First exception आपका ये है कि अगर जो पार्टीज हैं, ठीक है, वो ये अग्री अपॉन करती हैं कि अगर हमारा कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे हम आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे। आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है? दैट यू इन्वॉल्व अ थर्ड पार्टी, अ थर्ड न्यूट्रल पार्टी, एंड यू ट्राई टू डू एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो अगर किसी अग्रीमेंट में ये लिखा है कि कोई भी डिस्प्यूट होने पर, कोई भी हमारा मतभेद होता है, तो पहले हम आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, हम डायरेक्टली कोर्ट केस नहीं करेंगे। दिस हैज बीन हेल्ड टू बी एब्सोल्युटली वैलिड, क्योंकि वहां पर भी आप कोर्ट में जाने से मना नहीं कर रहे हो। दोनों पार्टीज क्या अग्री कर रही हैं कि अगर हमारा कोई डिस्प्यूट होता है तो पहले हम आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे या हम आर्बिट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे। If one of the parties is not satisfied with that arbitration process, they are free to go to the court. Fine. ऐसे ही if the parties agree कि हम अगर केस फाइल करते हैं, उसका जो भी जजमेंट आएगा दैट विल बी फाइनल फॉर अस, हम किसी भी हायर कोर्ट में अपील नहीं करेंगे, उसे भी वैलिड माना गया है। देन द लास्ट पॉइंट अंडर दिस इज गारंटी अग्रीमेंट ऑफ अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो दिस हैज बीन इंसर्टेड वेरी रिसेंटली इन 2012। आपका बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट जो है 2012 का, उसके थ्रू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको इंसर्ट किया गया इस पॉइंट को। और ये कहता है कि जहां पर बैंक गारंटी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, गारंटी एग्रीमेंट विद द बैंक या विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्ड है, वो लोग एक अग्रीमेंट एंटर कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, wherein they specify that such and such party's right will get extinguished or this party will be discharged of its liability within this much period. और ये जो this much period है, it has to be of at least 1 year. तो यानी कि हमारे जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी गारंटी अग्रीमेंट में अगर इन्वॉल्व हैं और वो एक टाइम स्टिपुलेट करते हैं विच टाइम इज ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, ठीक है, आपका एक्ट ये कहता है इट इज ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर, इसका मतलब हो गया एटलीस्ट 1 साल का टाइम तो उन्हें भी वहां पर स्टिपुलेट करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट एंटर किया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि इस 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद या 1 साल 1 महीने के बाद, 1 साल 2 महीने के बाद, कुछ भी टाइम पीरियड विच इज 1 ईयर और अबव दैट, कि इस टाइम पीरियड के बाद एक पर्टिकुलर पार्टी जो उस कॉन्ट्रैक्ट में है उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी या उसका राइट है कोई जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, दैट हैज बीन टेकन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए वो एक्सेप्शन में है एंड दिस हैज बीन इंसर्टेड इन 2012 ओनली, उससे पहले ऐसा नहीं था। Now moving on further, we have section 29 which relates to uncertain agreements. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा रहा है, कोई अग्रीमेंट एंटर किया जा रहा है जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस वेग हैं, ठीक है, सर्टेन नहीं है, तो वो अग्रीमेंट आपका वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर अग्रीमेंट में कुछ ऐसा लिखा गया है कि हाँ उसे वैलिड किया जा सकता है, ठीक है, कि वो जो वेग टर्म है उसको डिटरमिन करने का तरीका दिया गया है, तब वो वैलिड होगा, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल if somebody says that I am ready to sell you 100 bags of wheat at whatever price is deemed fit, ये वेग है, ठीक है, ये सर्टेन नहीं है। डीम्ड फिट, मेरे लिए डीम्ड फिट अलग हो सकता है, दूसरे के लिए फिट अमाउंट अलग हो सकता है, तो यहाँ पर वेगनेस है। बट इफ आई से दैट आई एम रेडी टू सेल यू 100 bags of wheat at the price decided by you, at whatever price you decide,
ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने सर्टेनिटी के साथ अमाउंट नहीं बताया, लेकिन वहां पर उस वेग टर्म को कैसे इंटरप्रेट करना है या वो कैसे सर्टेन बनेगा उसका तरीका है। क्या कह रहे हैं हम? आई एम रेडी टू सेल यू 100 बैग्स ऑफ व्हीट एट द प्राइस डिसाइडेड बाय यू, यानी कि आप जो प्राइस डिसाइड करोगे उस पे आई एम रेडी टू सप्लाई यू 100 बैग्स ऑफ व्हीट। तो वो जो अनसर्टेन चीज है कि क्या प्राइस होगा, उसको डिटरमिन करने का तरीका कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया गया है कि जो आप कहोगे वो प्राइस होगा। तो इसे हम एक वैलिड अग्रीमेंट मानेंगे, इसे हम वॉइड नहीं मानते हैं। Then I'll just come back to the wagering agreements because it will take a bit of time. But before that, we will discuss section 36 and 56. Section 36 कहता है agreements contingent on impossible events. तो आप किसी agreement में enter कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मैं ये XYZ काम करूंगी अगर एक impossible event हो जाता है, तो वो void है। वो जो collateral agreement है, जो contingent agreement है, वो भी void है, चाहे वो impossibility of that event आपको उस समय पता थी या नहीं पता थी। That does not make a difference. So that is why it is written whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made, it hardly matters. ठीक है, लेकिन अगर आप एक इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर एक अग्रीमेंट बना रहे हो कि अगर ये वाला इवेंट होगा तो मैं अगला काम करूंगी, और वो ये इवेंट होगा जो है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो आपका जो कंटिंजेंट अग्रीमेंट है वो भी वॉइड हो जाएगा। there is an example which is given in your book. It says that A agrees to pay 10,000 rupees to B. ठीक है, ए ने कहा कि मैं बी को 10,000 रुपीज पे करूंगा, और उसके ऊपर कंटिंजेंसी क्या लगाई, कब पे करूंगा, इफ बी मैरीज सी। अगर बी सी से शादी कर लेता है तो मैं बी को 10,000 रुपए दूंगा। ठीक, अब बी जो है वो सी से शादी नहीं कर सकते, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। क्यों? क्योंकि सी जो है वो ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, सी इज से हिंदू गर्ल एंड शी इज ऑलरेडी मैरिड। तो एज पर हिंदू मैरिज एक्ट आप सेकेंड मैरिज तो कर नहीं सकते, तो सी की सेकेंड मैरिज तो हो नहीं सकती, यानी कि बी सी से मैरिज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, और इस इम्पॉसिबल इवेंट पे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि अगर तुम ये इम्पॉसिबल इवेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपीज दूंगा। तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका अग्रीमेंट है वो वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। और सेक्शन 56 जो है वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इफ एनी अग्रीमेंट इज बीइंग एंटर्ड इनटू टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। ठीक है, कि मैं एक अग्रीमेंट एंटर करूं कि देयर इज अ डेड पर्सन और मैं उसको जिंदा कर दूंगी, तो दिस इज एन इम्पॉसिबल एक्ट। ये अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, और इसके लिए मेरे ऊपर केस फाइल नहीं किया जा सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट था, इन्होंने कहा था कि ये इसको शी विल मेक दिस डेड पर्सन अलाइव एंड नाउ शी इज नॉट डूइंग इट। This is no contract, so agreement to do an impossible act is void. Now coming on to our section 30, which is wagering agreements. wagering agreements का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था। The betting agreements are known as the wagering agreements. अब जो हमारे betting agreements हैं उनका क्या मतलब है, उसमें क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, क्या चीजें इंक्लूडेड नहीं होती हैं, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक वेजरिंग अग्रीमेंट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। पहला तो ये कि इट शुड बी एन अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, तो अनसर्टेन कोई भी इवेंट क्यों होता है कि या तो वो अभी हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है, या ऑलरेडी हो चुका है कोई इवेंट लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हमारे लिए वो रिजल्ट अनसर्टेन है। तो हम एक अनसर्टेन इवेंट पे अगर बेटिंग कर रहे हैं, that will come under the wagering agreements. Fine. Say for example, मैं ये कहूं कि कल बारिश होगी, शर्त लगा लो कल बारिश होगी। ठीक है, let us bet. मैं कह रही हूँ बारिश होगी, तुम कह रहे हो बारिश नहीं होगी, and we bet on it. Now this is an uncertain event. This is not in my hand. This is not in your hand. हमें नहीं पता कल एक्चुअल में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो it is an uncertain event. सिमिलरली इवेंट हो चुका है लेकिन हमें नहीं पता हुआ क्या है। मैं यहाँ बैठे बैठे कहूँ मुझे नहीं पता कि चंडीगढ़ में क्या हो रहा है,
लेकिन मैं अपनी फ्रेंड से कहूँ आज ना मुझे ऐसा लग रहा है चंडीगढ़ में जरूर बारिश हुई है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन एन अनसर्टेन इवेंट, क्योंकि हम उस इवेंट की बात कर रहे हैं जो हो चुका होगा लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है. So the first essential thing is that it should be about an uncertain event. Second, there should be mutual chance of gain or loss. यानी कि जो दो पार्टीज वेजरिंग अग्रीमेंट एंटर कर रही हैं उन दोनों का इक्वल चांस है कि एक जीत सकता है दूसरा हार सकता है. ठीक है, और हो सकता है पहला वाला हार जाए और दूसरा वाला जीत जाए. सो ईच पार्टी हैज एन इक्वल चांस ऑफ ईदर विनिंग और लूजिंग. फाइन, सो दैट विल बी योर वेजरिंग अग्रीमेंट. अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट है जहां पर जो पार्टीज हैं दे कैन विन बट देयर इज नथिंग टू लूज, तो वो वेजरिंग अग्रीमेंट नहीं आता. तो देयर हैज टू बी अ म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस. One party will win, other party will have to lose. Then only it will come under wagering agreements. Then the third essential thing is that the parties who are entering into such agreement, they do not have a control over it. So this is an event that we are talking about which is not in our hand. जैसे मैंने कहा कि मैं बारिश होने पर अगर शर्त लगा रही हूँ तो बारिश होना या ना होना, I do not have any control over that event. Then these parties are not having any other interest in the event. इस इवेंट के होने या ना होने से उनका और कोई भी इंटरेस्ट इसमें नहीं है सिवाय इसके that either they will win in this agreement or they will lose in this agreement. So it is entirely a wagering thing, a betting thing कि आप bet लगा रहे हो, सिर्फ आपका फायदा या नुकसान उस इवेंट के होने या ना होने से वहीं तक है. एंड प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ, कि हम शर्त क्यों लगा रहे हैं. अगर हमने सिर्फ वैसी शर्त लगाई, ठीक है, तो वो वैसे भी अग्रीमेंट में नहीं आता. वो वेजरिंग अग्रीमेंट तब बनेगा व्हेन इट इज लिंक्ड टू मनी और समथिंग which money can buy. So money or money's worth, then only it will be wagering agreement. Now सेक्शन 30 क्या कहता है कि वेजरिंग अग्रीमेंट्स जो हैं वो वॉइड हैं. यानी कि अगर इस तरह का कोई अग्रीमेंट एंटर किया जाता है तो यू कैन नॉट फाइल एनी केस इन द कोर्ट for recovering any money that you have won under this wagering agreement or you have lost under this wagering agreement. No case will be filed regarding this in the court of law. Now there are certain things that we need to discuss, जिसको हमने यहाँ peculiar cases लिखा है, so that we can try to understand whether they come under the wagering agreement or not, and if they do not come then why they are not covered in this. पहला इसमें है commercial transactions. So when commercial transactions का क्या मतलब है, when we are dealing say in share market or commodities market, derivatives, shares खरीदना, share market में पैसा लगाना, क्या वो wagering agreement है? तो law कहता है नहीं, these are not the wagering agreements because there is a genuine intention to do legitimate business. Legitimate business क्या हो रहा है, अगर हम share market में deal कर रहे हैं, so you are getting the shares and you are paying money in return. It's not that you are just paying money, you're not getting anything in return. So you are getting something back in return. You are buying something from the market. You are buying it in form of shares. Similarly, जब आपके derivatives हैं या आपका commodity market में आप deal कर रहे हो, so you are buying some goods. You are buying some underlying commodity and that is why you are paying. So such kind of commercial transactions are not the wagering agreements. Then is lotteries. लॉटरीज जो हैं वो वेजरिंग अग्रीमेंट के अंडर डायरेक्टली हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसलिए बिकॉज देयर इज अ सेपरेट एक्ट डीलिंग विद दिस. ठीक है, देयर इज अ सेंट्रल लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1998 एंड देन देयर आर सर्टेन रूल्स आल्सो व्हिच हैव बीन ब्रॉट आउट इन 2010. तो ये रेगुलेशन और ये रूल्स जो हैं 2010 के ये मिलकर के रेगुलेट करते हैं कि लॉटरीज का क्या स्कोप है, कहाँ लॉटरीज हो सकती हैं, क्या उससे रिलेटेड केसेस होंगे. जो हमारा एक्ट है सेंट्रल लॉटरीज एक्ट, इट परमिट्स द स्टेट ऑर्गेनाइज्ड लॉटरीज. ठीक है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का इसको सब्जेक्ट बना दिया गया एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स whether they have to allow the lotteries or not in their particular state, और स्टेट ऑर्गेनाइज्ड जो लॉटरीज हैं उसे इलीगैलिटी से हटा दिया गया है. ठीक है, पहले क्या था, 294 सेक्शन ए कैपिटल ए 294A ऑफ इंडियन पीनल कोड, इसके अंडर ही कवर होता था, 294 के अंडर कवर होता था इंडियन पीनल कोड के अंडर, विच मीन्स इट वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस टू डील इन लॉटरीज.
लेकिन 294A जो इंडियन पीनल कोड का है वो अब ये कहता है दैट इफ अ लॉटरी इज नॉट ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट then it shall be a punishable offense. So that means state organized lotteries जो हैं they have been validated, they are no longer a criminal offense. अब इसका इम्पैक्ट हम समझते हैं कि आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे क्या आएगा. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि ऑल्दो जो आपकी स्टेट ऑथोराइज्ड लॉटरीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड लॉटरीज हैं, वो इंडियन पीनल कोड के अंडर नहीं आती. इसका मतलब ये है that a person who is dealing in these lotteries will not be guilty of a criminal offense. Criminal charges उस पर नहीं लगेंगे, but the lottery will remain a wager. It will be considered as a wagering agreement and thus we will not cover it as a valid contract under the Indian Contract Act. तो यानी कि लॉटरी में अगर आप कुछ पैसा जीत जाते हो और वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर केस फाइल नहीं कर सकते हो, बिकॉज वहां पर वो वेजरिंग अग्रीमेंट है और वो वॉइड है. यू कैन गो एंड यू कैन सी अंडर द सेंट्रल लॉटरीज एक्ट कि वहां पर क्या कंडीशंस हैं, वहां पर क्या केस फाइल हो सकता है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर ये केस फाइल नहीं होगा. देन वी हैव रिलेटेड टू हॉर्स बेटिंग. हॉर्स रेस पे जो बेटिंग होती है वहां पर हमारा लॉ ये कहता है कि कोई भी ऐसी हॉर्स रेस जिसमें जो प्राइज मनी है दैट इज मोर देन ₹500, जो बेटिंग आप कर रहे हो, इफ इट इज ग्रेटर देन ₹500 तो वो वैलिड है. लेकिन अगर ₹500 से कम की बेटिंग हो रही है तो उसे वैलिड नहीं माना जाता, उसे वॉइड माना जाता है. इसका रीजन ये है कि जो ₹500 डिफाइन किया गया है वो इसलिए किया गया है सो दैट अ पर्सन हु इज नॉट वेरी वेल ऑफ, ठीक है, द पर्सन हु इज नॉट अर्निंग मच, अ पुअर पर्सन, उसका लॉस ना हो बेटिंग करके. तो इसलिए वो 500 की लिमिट रखी गई है कि 500 से ऊपर की अगर बेटिंग हो रही है तो ये माना जा रहा है कि हाँ उस पर्सन के पास पैसा होगा लगाने के लिए. दैट इज व्हाई इट वाज अलाउड. ऑल्दो इफ we talk in today's sense, so 500 भी अब कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, so it needs to be revised, but as of now this is what where the law stands कि अगर हॉर्स बेटिंग में ₹500 से कम की बेटिंग है involved, then it is void. If the betting amount is greater than ₹500, then it is valid as of now. डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग की मैंने आपसे बात कर ली, दैट इज ऑल रिलेटेड टू स्पेकुलेशन, उसे हम गैम्बलिंग में नहीं लेते हैं. Then similarly, okay, now let's come to quiz competitions and crossword puzzles. Crossword puzzle में लॉ ये कहता है कि आपका प्राइस अगर इस बात पर डिपेंडेंट है कि आप कितनी स्किलफुली उस पजल को सॉल्व कर पा रहे हो, कितनी इंटेलिजेंस के साथ उस पजल को सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो वैलिड ट्रांजैक्शन है. लेकिन अगर कोई इस तरह का क्रॉसवर्ड पजल है कि उसका एक ऑलरेडी आंसर बना हुआ है और वही आंसर अगर आप दोगे तो आप जीतोगे, सो देयर कैन बी n नंबर ऑफ आंसर्स टू दैट पजल, लेकिन जो पजल क्रिएटर हैं या जो क्रॉसवर्ड पजल्स करवा रहे हैं उन्होंने एक आंसर ऑलरेडी सोच रखा है. सो देयर इज अ पजल, इट हैज 5 आंसर्स, ऑल 5 आंसर्स आर करेक्ट, लेकिन आपसे कहा जाता है कि नहीं जो हमने सोच रखा है आंसर आप वही बताओगे तो जीतोगे, then it is a wagering agreement. Otherwise, if the crosswords have to be solved on the basis of your skills, on the basis of your intelligence level, and then the prizes are to be won, it is a valid transaction. And in that also, the Prize Competition Act of 1955 comes into play, which says this amount of prize on the crosswords should not exceed ₹1,000. उससे ऊपर अगर होगा तो फिर वो उसमें वेजरिंग अग्रीमेंट में चला जाएगा. क्विज कॉम्पिटिशंस जो हैं उन्हें कहा गया दैट दे विल नॉट बी वेजरिंग अग्रीमेंट्स बिकॉज हेयरइन द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट हैविंग एनी चांस ऑफ लूजिंग. ठीक है, इनफैक्ट स्पेशली देयर वाज अ केस ऑन दिस केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति जो आता है, उस पर भी केस हुआ था एंड इट वाज हेल्ड दैट इट इज अ गेम शो. फाइन, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी गैम्बलिंग. You have to show your skills, you have to show your intelligence, and you're not going to lose anything. So you're going into that competition, either you are going to win money or you're not going to win it.
there is no chance of losing out anything, so it will not cover, it will not get covered under the wager. Also, price competitions जो define किए गए हैं under price competition act, ये उसमें नहीं आता है, does not fall within that particular definition. All such kind of quiz competitions, game shows which are there on the television, तो इसलिए यहाँ पर वो 1000 rupees की price limit जो है वो भी applicable नहीं है. Now, the last point that we are going to discuss is related to the insurance contracts. The insurance contracts are not the wagering agreements, they are very different from it. क्यों हम इसको insurance contracts को specifically study करते हैं in detail? Because if you talk about the insurance, that is also dependent on happening of an uncertain event. अगर मैं आज अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस ले रही हूं, तो मैं क्या सोच करके ले रही हूं कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, आई क्लेम दैट इंश्योरेंस मनी. So it is totally dependent on an uncertain event. It may happen, it may not happen, right? So some people can get confused कि इंश्योरेंस भी तो हम इसी तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड वन विल हैव टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ द अदर. तो इंश्योरेंस कंपनी जब मुझे पेमेंट करेगी तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ रहा है और मेरे पास पैसा आ रहा है, सो वन इज गेनिंग, वन इज लूजिंग. बट देन हाउ इज वेजरिंग अग्रीमेंट एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेजरिंग अग्रीमेंट, वहां पर आप क्या कर रहे हो? आप जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द फेथ, ऑन गुड फेथ. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किस चीज पे डिपेंडेंट होता है? ऑन द अटमोस्ट गुड फेथ. जो आपके वेजरिंग अग्रीमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं दे आर नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वेयर एज एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है? इंडेमनीफाइंग मतलब होता है किसी के लॉस को गुड करना, किसी का कुछ नुकसान हुआ है उसका वो उसके उस नुकसान की भरपाई करना, ठीक है. टू मेक समबडीज लॉस गुड इज नोन एज इंडेमनिफिकेशन. तो अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो क्या होता है? अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो जो लॉस हुआ है उस गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से इंश्योरेंस कंपनी उतना पैसा आपको पे कर देती है. सो दे आर मेकिंग योर लॉस गुड, एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस को हम इंडेमनिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं कहते हैं. रीजन बीइंग कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में पैसा कब मिलता है? कि किसी ने किसी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, अब उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट है मिल जाता है. बट विद एनी अमाउंट ऑफ मनी आप किसी पर्सन की कमी पूरी नहीं कर सकते. गाड़ी का नुकसान हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 10,000 का लॉस हुआ, 10,000 इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, इंडेमनीफाई हो गया. सम पर्सन हैज डाइड, आप उसको उसके बदले 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए भी दे दो, यू कैन नॉट इंडेमनीफाई, यू कैन नॉट मेक द लॉस गुड. उस पर्सन की कमी को आप पूरा नहीं कर सकते हो. दैट इज व्हाई वी से इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. सॉरी. देन जब हम वेजरिंग अग्रीमेंट्स में बात करते हैं, हमने कहा था that the people have no other interest in that event. उनका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है. बट जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हम उसी का इंश्योरेंस ले सकते हैं जो मेरी प्रॉपर्टी है. अगर मैं गाड़ी का इंश्योरेंस ले रही हूं तो मैं तभी बाय कर सकती हूँ उस इंश्योरेंस को अगर वो मेरी गाड़ी है. मैं अपनी पड़ोसी की गाड़ी के लिए इंश्योरेंस बाय नहीं कर सकती, राइट? या मैं किसी और के घर के लिए इंश्योरेंस बाय नहीं कर सकती. सो द पार्टीज हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट ओवर देयर. Then another difference is that in your wagering agreements क्या अमाउंट पे करना है, that is fixed. The amount payable is fixed. कि अगर आप बेट लूज करते हो आप कितना अमाउंट पे करोगे. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा नहीं है. That will depend upon the loss. जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं they will check that how much loss you have suffered and accordingly they will pay the insurance money as per the terms and conditions. कितना अमाउंट पेबल होगा, कितना प्रीमियम लेना चाहिए, वहां पर भी जो वेजरिंग अग्रीमेंट्स हैं वहां पर ऐसा कुछ कंप्यूटेशन नहीं किया जाता. लेकिन जब आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करते हो, जो आप प्रीमियम अमाउंट पे करते हो, किससे कितना प्रीमियम अमाउंट लेना है, दैट इज कंप्यूटेड वेरी साइंटिफिकली. ठीक है, देयर इज अ होल एरीना रिलेटेड टू दिस व्हिच इज नोन एज एक्चुरियल साइंसेस, जिसमें ये डिटरमिन किया जाता है कि किस पर्सन से कितना आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम लेना है. सो इफ यू विल बाय हेल्थ इंश्योरेंस, यू विल सी
डिपेंडिंग अपॉन योर एज आपका जो प्रीमियम है वो चेंज हो जाता है। जो यंगस्टर्स हैं उनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम है वो कम लिया जाएगा ऑन दी assumption कि उनके बीमार होने के चांसेस कम है एज कंपेयर टू एन एल्डरली पर्सन। Similarly, if somebody is already suffering from some chronic disease, ठीक है, या उनको हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है या वो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, तो उनके लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगे उसमें जो प्रीमियम अमाउंट है वो आपको बाकियों से ज्यादा पे करना होता है। सो देयर इज अ साइंटिफिक कंप्यूटेशन रिलेटेड टू दीज थिंग्स। वेजरिंग अग्रीमेंट में सोल हमारा जो मोटिव है वो क्या है, दैट आई हैव टू अर्न प्रॉफिट। मैं कुछ पैसा लगाऊं नहीं और मुझे बैठे बैठे प्रॉफिट हो जाए। जब हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं वहां पे पर्पस क्या है, एम क्या है, कि अगर कोई लॉस हो जाता है फ्यूचर में तो वहां पर मुझे उस नुकसान की भरपाई हो जाए, मुझे वो पैसा मिल जाए, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि जो आपके वेजरिंग अग्रीमेंट्स हैं दे आर डेफिनेटली नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, they go against the public interest, whereas if we talk about insurance contracts they are good for the public at large, so they are in public interest. So these are the major differences between the insurance contracts and the wagering agreements, and this also brings us to the end of this particular chapter.